بغیر سوچے سمجھے کسی بھی سنی کو یہ بدعتی بولتے ہیں، بلکہ ہمارے جماعت کا نام ہی انہوں نے بدعتی رکھ دیا، بدعتی جماعت۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کے اس وقت جو بھی بہت بڑے ان کے عالم اور علامہ ہیں، سربراہ ہیں، جن کا نام طارق جبیل صاحب ہے، اعلیٰ حضرت کو بدعتی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ مگر آئیے انہی کے بیان میں کتنے تضاد ہے، اسی بیان کے ضمن میں میرا اب آگے کا پورا بیان چلے گا۔ پہلے طارق جمیل صاحب پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور تبلیغی جماعت کے ابھی سب سے بڑے ہیڈ، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے امیر کہلاتے ہیں۔ ابھی طارق جمیل کی بڑی عزت اور ویلو ہے ان کے یہاں۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، بڑے غور سے بیان سنیں۔ تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں، ان کے کیا ملفوظات ہیں، ان کی کیا تحریریں، میں نے وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ وہ قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کوئی اور ہے، اس پر وہ کافر ہو جائے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو احمد رضا خان صاحب مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ پھر بدعت اپنی جگہ پر تو کھڑی رہتی نہیں، گاڑی جب اچھلتی ہے تو پھر ایک کلا بازی نہیں لیتی، پھر کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں آنے والوں انہوں نے کیا سے کیا، کیا سے کیا، کر بہت سی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیسے بدلی کیسے بدلی۔ پورا بیان سنا آپ نے، سمجھ میں آیا کہ ایک بار اور سنائیں؟ دیکھیے آئیے ان کے بیان کا خلاصہ۔ پہلا جملہ تھا ان کا، بریلویت کی اصل احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے، ملفوظات کو پڑھا نہیں، مگر یہ پتہ چل گیا کہ بریلویت کی اصل ہے۔ بنا پڑھے ہی ان کو معلوم بھی ہو گیا، گویا کہ ان کو علم غیب ہے۔ وہیں کہ وہیں تضاد دیکھتے جائیں۔ بریلویت کی اصل مولانا احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں، میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے۔ جب آپ نے پڑھا نہیں تو کیسے جان لیا کہ بریلویت کی اصل یہ کتاب ہے؟ اول تو الملفوظ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کو ملفوظات ہی نہیں پتہ کیا ہوتی ہے۔ بریلویت کی اصل میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی ملفوظات نہیں ہے، بریلویت کی اصل عقیدہ رسول، عقیدہ صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اور جتنی اعلیٰ حضرت کی کتابیں، سب کتابوں کو لے کر میں بڑی ذمہ داری سے، ذمہ دار اسٹیج میں پر، ذمہ دار مسند سے، ذمہ دار علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی کتابوں میں کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس کی تائید میں قرآن، احادیث، ائمہ کے اقوال نہ ہو۔ سبحان اللہ، سارے عقیدے یا تو قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، صحابہ سے ہے، یا ائمہ مجتہدین سے ہے۔ بے شک بے شک۔ کوئی بھی عقیدہ ان کا خود ساختہ نہیں۔ تو بریلویت کی اصل الملفوظ نہیں ہے، بریلویت کی اصل کیا ہے؟ عقائد صحابہ اور عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے تو یہی دو انہوں نے کیا۔ اب دیکھیے بدماشی، چونکہ ان کے علماء نے گستاخی کر کر کے اپنے آپ کو اتنا گستاخی کا عادی بنا دیا کہ علماء اہل سنت نے، اکابر علماء نے، بزرگوں نے، حرمین طیبین کے علماء نے ان پر حکم کفر لگایا اور کہا یہ گستاخی کی بنا پر، اللہ رسول کی شان میں توہین کی بنا پر ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اب اپنے بزرگوں کے کفر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سارے صحابہ کو کافر کہہ دے تب بھی اس پر حکم کفر لوٹیں گا نہیں۔ یعنی کوئی دھڑلے سے پورے صحابہ کو کافر کہہ سکتا ہے، کوئی کھڑا ہو کر میں ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، طارق جمیل کے کہنے کے مطابق تب بھی وہ مسلمان ہے۔ کوئی کہے میں حضرت عمر کو مسلمان نہیں مانتا، تب بھی وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ عقیدے کا آپ دوگلا پن ہے۔
पन देखें। अब एक एक चीज पर हम चलेंगे इंशाल्लाह। इनके नजदीक सारे सहाबा को भी अगर काफिर कह दो तब भी वो काफिर नहीं होता। काफिर होने की सिर्फ एक वजह बताई इन्होंने। अगर कोई कहता है कि ये जो कुरान है ये वो नहीं है जो अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ था, तब उसको काफिर कहा जाए। सारे सहाबा को अगर कोई काफिर धल्ले से कहता फिरे उस पर हुक्म कुफ्र नहीं लगेगा। मगर आइए एक किताब देखिए इनके आलिम की, और ये किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया मैं बता दूं। उन्होंने कहा ये फतवा मैंने अपने ही अकाबिर की किताब में देखा। तो वो अकाबिर जिनकी किताब में ये फतवा है वो फतावा रशीदिया है। रशीद अहमद गंगोही ने भी ये लिखा कि साहबा को काफिर कहने वाला सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं होगा, वो सुन्नी रहेगा, मुसलमान ही रहेगा। मगर उसी फतावा रशीदिया में आइए रशीद अहमद गंगोही साहब क्या लिखते जरा देखें। फतावा रशीदिया का सफा नंबर 180, इस्माइल दहलवी साहब जिन्होंने तक़वतुल ईमान लिखी, जो उलमा देवबंद और गैर मुक़ल्लिदीन के आलिम व पेशवा है, उनके ताल्लुक से एक सवाल पूछा गया है कि इस्माइल दहलवी को बाज लोग काफिर कहते हैं, तो ये कैसा है। तो रशीद अहमद गंगोही इनके अकाबिर और पेशवा क्या जवाब देते हैं। कहते हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब आलिम, मुत्तकी, बिदत के उखाड़ने वाले और सुन्नत के जारी करने वाले और कुरान व हदीस पर पूरा पूरा अमल करने वाले और खल्क को हिदायत करने वाले थे और तमाम उम्र इसी हाल में रहे। आखिरकार फी सबीलिल्लाह जिहाद में कुफार के हाथ शहीद हुए। आगे कहते हैं फिर हक ताला की राह में शहीद हुआ, वो कतई जन्नती है, मुखलिस वली है। ऐसे शख्स को मरदूद कहना खुद मरदूद होना है और ऐसे मकबूल को काफिर कहना खुद काफिर होना है। यानी आप पूरे सहाबा को, नबी के पूरे आशिकों को काफिर कहो तो आप काफिर नहीं होते, मगर इस्माइल दहलवी को अगर आपने काफिर कह दिया तो आप काफिर हो गए। अब बताइए इस्माइल दहलवी का मकाम बड़ा है कि सहाबा इकराम का मकाम बड़ा है। ये किताब मौजूद है। मैं देवबंदी हजरात अगर यहां सुन रहे हो तो मैं कहूंगा किसकी मोहब्बत में जा रहे हो, अपने हाल-ए-जार पर रहम करो खुदारा। हमारी बातों की तलखी को मत देखो, अपने अकीदे को खंगालो कि जिस जमात में तुम हो क्या वो अकीदा सही है। तुम्हारे उलमा के अंदर देखो कितने तजाद है। एक कहता है सारे सहाबा को काफिर कह दो, उस पर उसका हुक्म कुफ्र नहीं आएगा। मगर इस्माइल दहलवी का पल्ला देखो कितना भारी है। एक तरफ रसूल के तमाम सहाबा और एक तरफ ये इस्माइल दहलवी नाबिकार। तो इसको जो मरदूद कहे वो मरदूद, जो इसको काफिर कहे वो काफिर। और सहाबा में कैसे कैसे सहाबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत का पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में, तो अबू बकर का ईमान सब पर भारी है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। वो अबू बकर जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमा रहे, लोगों जिसने भी मुझ पर कोई एहसान किया मैंने उसका बदला उसको दुनिया में दे दिया सिवाय अबू बकर के। हजरत उमर के बारे में कहा, लोगों उमर वो है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। वो उमर, एक जगह फरमाया हर उम्मत के नबी के अंदर, हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, एक फकीह होता है। मेरी उम्मत का फकीह अब्दुल्लाह इब्न मसूद है और मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर इब्न खत्ताब है। अली के बारे में कहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। उस्मान के बारे में कहा, उस्मान वो है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान गनी वो है जिस पे जन्नत फक्र करती है, जिसकी तलब में जन्नत मुश्ताक है उस्मान की। ऐसे एक से एक बढ़कर सहाबा, मगर ऐसे जलील कदर सहाबा को काफिर कह दो तो आप काफिर नहीं होते। मगर इस्माइल दहलवी का लेवल कितना है, ऊंचा है कि इस्माइल दहलवी को जैसे आपने काफिर कहा ईमान से खारिज। अब आइए इस्माइल दहलवी को काफिर कहा क्यों गया, गुफ्तगू तो उस चीज पर करना चाहिए आपको कि भाई इस्माइल दहलवी को अगर कुछ लोगों ने काफिर का, सवाल यही हुआ है कि इस्माइल दहलवी को काफिर कहना कैसा। तो कहा कि नहीं, इस्माइल दहलवी तो शहीद थे, उन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की, बिद्दतों को उखाड़ा। जो उनको काफिर कहे वो खुद काफिर है, जो उनको मरदूद कहे वो मरदूद है। आइए इस्माइल दहलवी की मैं किताब से 2 इबारतें बता रहा हूं, फैसला आप पे छोड़ रहा हूं कि ऐसा कहने वाला मरदूद है कि मकबूल है, ऐसा कहने वाला मुसलमान है कि काफिर है, आप खुद देखें। आइए ये किताब है तक़वतुल ईमान इस्माइल दहलवी साहब की, जिसकी बिना पे इनको काफिर कहा गया। सफा 65 पर इस्माइल दहलवी कहते हैं सजदा करना सिर्फ खालिक ही का हक है,
किसी भी मखलूक को सजदा ना किया जाए, और मखलूक होने में चांद और सूरज, नबी और वली बराबर है। ये इबारत से हमें इख्तिलाफ नहीं है, हम भी तस्लीम करते कि सजदे के लायक सिर्फ कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरी शरीयत में सजदा जायज नहीं है। अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज होता, मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करे, मगर मेरी शरीयत में जायज नहीं। हम भी कहते हैं कि सजदा ना चांद को किया जाए, ना सूरज को, ना मखलूक में किसी को, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को। मगर मैं ये इबारत बता के ये बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने खुद यहां बयान किया सफा 65 पर कि मखलूक में चांद, सूरज, नबी और वली बराबर है। यानी मखलूक में नबी भी है, मखलूक में वली भी है, ताकि कोई ये बात में तावील ना पेश करे कि भाई मखलूक में नबी और वली नहीं आते। उन्हीं की इबारत मैंने उनकी किताब से दिखा दी कि मखलूक में नबी और वली भी आते हैं। आइए अब उसी किताब का सफा 30 देखें, और सफा 30 पर वो लिखते हैं, और ये यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ी हो या छोटी, मखलूक में कौन है? नबी भी है और वली भी है। अब कह रहे हर मखलूक बड़ी हो या छोटी, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। अब मखलूक में रसूलुल्लाह भी है, माअज़ल्लाह, मखलूक में आदम अलैहिस्सलाम भी है, नूह अलैहिस्सलाम भी है, तमाम अंबिया है, तमाम औलिया है। इस्माइल दहलवी के नजदीक इन सब का लेवल क्या है? चमार से ज्यादा जलील है। चमार की तो इज्जत है, मगर इनकी इज्जत अल्लाह की बारगाह में उतनी भी नहीं, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मगर इस्माइल दहलवी की खुद इनके मुल्लाओं के नजदीक इज्जत कितनी है? जो इनको मरदूद कहे वो मरदूद, जो इनको काफिर कहे काफिर। मगर ये धड़ल्ले से तमाम नबियों को चमार से ज्यादा जलील बोल दे, ये डेरिंग के साथ तमाम वलियों को माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, चमार से ज्यादा जलील बोल दे, तब भी ये मुजाहिद इस्लाम है, पक्के है और जन्नती है। अब आइए एक और मैं चीज बता दूं, असल में होता क्या है, यहां पे थोड़ी सी तशरीह करने की जरूरत है, इसलिए मैं कर रहा हूं। उमन ऐसी इबारतें लाओ तो वो क्या कहते हैं इनकी जमात वाले कि भाई वो अल्लाह का मकाम बताना मकसूद है उनका, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा दलील है। यानी अल्लाह की शान बहुत ऊंची है, उनकी शान के आगे नबी वली की क्या औकात है, ये बताना मकसूद है। और इसी शान बताने के चक्कर में वो कैसी कैसी बातें कहते हैं, आइए जरा देख लें। खुद रशीद अहमद गंगोई फतावा रशीदिया में, इसका सफा नंबर 97 है, उस पर वो लिखते हैं, इबारत का मफहूम ये है, पहले पढ़ लेता हूं फिर मफहूम बताता हूं। कहते हैं, पस साबित हुआ कि किस्ब दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो, वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर। कहते हैं ये साबित हो गया है कि झूठ बोलना अल्लाह की कुदरत के तहत है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, उस पर वो कादिर है। और इसलिए कादिर है कि वो खुद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है, और झूठ ना बोले तो फिर वो कादिर नहीं होगा। इसी तरह का अकीदा जाकिर नाइक साहब का भी देख ले, किताब का नाम है कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स। डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह का इख्तियार बताते हुए कहते हैं, गॉड कैन बी अनजस्ट इफ ही वांट्स, बट द मोमेंट गॉड डज इनजस्टिस ही केस टू बी गॉड। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में जाकिर नाइक कह रहे हैं माज़अल्लाह कि अल्लाह ना इंसाफी नहीं करता, मगर अल्लाह अगर ना इंसाफी कर दे, जुल्म कर दे, किसी के साथ बुरा कर दे, किसी के साथ ना इंसाफी कर दे, तो कहते वो ना इंसाफी करता तो नहीं है, मगर करने पर कादिर है। और जिस वक्त जब वो ना इंसाफी करेगा, जुल्म करेगा, खुदाई ओहदे से माजूल हो जाएगा।